Wheatstone bridge. Today I am going to begin this topic, Wheatstone bridge. It is the bridge arrangement of resistances with the help of which we can find an unknown resistance. मतलब ये क्या है, ब्रिज अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेज का, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, दैट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस. सो with the help of bridge arrangement of resistance we can find unknown resistance. Here there are 4 resistors in which one resistor is of unknown value, one resistor is of known value, and the ratio of resistances of remaining 2 resistors are known. मतलब क्या है, 4 resistances हैं in which one is of unknown value which you have to find, one is of known value, while the ratio of the resistances of remaining 2 resistors is known. मतलब जो रिमेनिंग 2 रजिस्टर्स हैं उनके रजिस्टेंसेज तो नहीं पता हैं, पर उनके रजिस्टेंसेज का क्या रेशियो है, दैट इज नोन टू अस. दे आर अरेंज्ड in the form of along the sides of a quadrilateral. You can see here, you can name this A, B, C, D. ये चारों रजिस्टर्स कहाँ कनेक्टेड है, अक्रॉस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कहाँ पर हम अननोन वैल्यू वाले रजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे. वेयर विल यू कनेक्ट द रजिस्टेंस ऑफ नोन वैल्यू, where will you connect the resistances whose ratio is given, whose ratio of resistances is given, उनको कहाँ कनेक्ट करेंगे, that I will tell you afterwards. So see here, these 4 resistors are connected along the sides of a quadrilateral. Now there are 2 diagonals of this quadrilateral. One diagonal is BD. Across this diagonal BD we connect the galvanometer. It is a center zero galvanometer in which the needle will be in the undeflected position, will be at the center. It can deflect in the clockwise direction as well as it can deflect in the anti-clockwise direction. दोनों डायरेक्शन में needle क्या है, डिफ्लेक्ट कर सकती है. So across one diagonal center zero galvanometer is connected. What is the purpose of galvanometer? It is used to detect the presence of any current in the circuit. अगर सर्किट में कोई करंट है उसकी प्रेजेंस को ये डिटेक्ट कर लेगा by showing the deflection. If it is showing the deflection it means there is some current in the circuit. It's clear? मतलब उस ब्रांच से होके कुछ करंट पास हो रही है. Then across the other diagonal AC, इस डायगोनल के क्रॉस हमने इधर कनेक्ट कर दिया है. वी कनेक्ट ए सेल आर बैटरी एंड दिस इज द प्लग की विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ द करंट. इट्स क्लियर. सो नाउ सी हियर R1 and R2, these are the resistances in ratio arms, resistances in ratio arms. While R3 is what? It is the resistance of known value, resistance of known value, जिसकी वैल्यू हमको पता है, वैल्यू. While R4 it is unknown resistance which you have to determine, unknown resistance. नाउ सी हियर, हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम वी हैव कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ पर कनेक्टेड है, जहाँ पर R1 और R2 आपस में कनेक्टेड हैं टुगेदर. एट B पॉइंट दे आर कनेक्टेड टुगेदर. सो वन एंड इज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर. और दूसरा कहाँ कनेक्ट है, जहाँ पर R3 और R4 का कॉमन एंड है, मीन्स दिस. हियर वी विल कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर. इट इज क्लियर. देन अक्रॉस A and C, in between A and C we will connect the battery. Now see here, how will you find the value of unknown resistance?
So first we will see that whether this bridge arrangement of resistances, it is in the balanced state या नहीं, ये बैलेंस्ड स्टेट में है कि नहीं, ये ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज, whether it is in the balanced state or not. So how will you ensure this? First of all, we will close the key K and pass the current in this. When you will pass the current here, current will divide here in two paths. One part will go in this side, other part will go in this side. It is clear? Now if on passing the current through the bridge, galvanometer do not show any resistance, then we will say that this arrangement of resistances, this bridge arrangement of resistances, it is in the balanced state, या ये ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड स्टेट में है. मतलब क्या है, इफ ऑन पासिंग द करंट थ्रू द ब्रिज गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या हो, जीरो हो, क्योंकि तभी ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा. देन दिस ब्रिज इज सेट टू बी इन द बैलेंस्ड स्टेट, और ये जब बैलेंस्ड स्टेट में होगा, देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2, R3, R4. वी विल फाइंड दिस रिलेशनशिप R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. सो इफ यू फाइंड आउट R4 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, देन इट विल बी इक्वल टू R3 विद इन ब्रैकेट, दिस विल गो इन दैट साइड, R2 अपॉन R1. It's clear? Means we can write in this way, R3 into R2 upon R1. It's clear? So how can you adjust the balanced state of this Wheatstone bridge? By adjusting the value of this ratio. R2 और R1 की वैल्यूज का जो रेशियो है उसको एडजस्ट करके, आर बाई एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R3 वी विल इंश्योर दैट गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे. इन दैट केस दिस ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, इन शॉर्ट वी राइट इट एज WSB. This Wheatstone bridge will be in the balanced state, and what will be the relationship between them? It will be R1 upon R2 equals to R3 upon R4. It is clear? Now see here, when galvanometer is not showing any deflection, when no current is passing through galvanometer, then you will find that B point का जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, D point का पोटेंशियल होगा. VB और ये इसका पोटेंशियल VD बोथ विल बी इक्वल. इन द बैलेंस्ड स्टेट व्हाट विल बी, VB विल बी इक्वल टू VD, VB इक्वल्स टू VD, क्योंकि हमको मालूम है करंट तभी फ्लो करती है व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग इन एनी ब्रांच, मतलब उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब उसके दोनों एंड्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बराबर है. So now we will deduce this condition. So you can see once again, Wheatstone bridge, it is the bridge arrangement of resistances with the help of which we can find the resistance of a resistor whose value is not known to us. In this bridge arrangement of resistances, there are 4 resistors including the resistor of unknown value. वो 4 रजिस्टर्स कौन से हैं, एक तो हमने बता ही दिया है, रजिस्टर ऑफ अननोन वैल्यू, वन इज ऑफ नोन वैल्यू, एंड फॉर द रिमेनिंग टू व्हाट इज नोन टू अस, रेशियो ऑफ द रजिस्टेंसेज ऑफ रिमेनिंग टू रजिस्टर्स इज नोन. उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, पर हमको ये पता है कि उनका रजिस्टेंसेज का रेशियो क्या है. इट्स क्लियर? देन we will connect the resistances in this way and pass the current by closing the key K in the bridge and adjust the ratio of the resistances and resistance of known value.
इन रेजिस्टेंसेज को हम एडजस्ट करके वो पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे इन विच गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मीन्स नो करंट पासिंग थ्रू द galvanometer, means both the ends of galvanometer are at same electric potential. In that condition, what will be the relationship between this? It will be this. This is the condition of balanced Wheatstone bridge. We can call it as condition of balanced Wheatstone bridge. This. It's clear. Now see here. Now after this we will deduce this condition. So see here, how will you deduce this condition? So you can see here. कैसे हम इस कंडीशन को डिड्यूस करेंगे। अब एक चीज़ हम ये और बता दें यहाँ पर कि R1 और R2 का रेशियो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। सी हियर, दिस इज ए वायर। हमने ये वायर ऐसे नहीं बनाया है, हमने ये वायर ऐसे बना दिया। इट्स क्लियर। इट विल हैव सम रेजिस्टेंस। इस वायर को हमने नेम कर दिया है AC. It's clear. And here this wire is having uniform resistance per unit length everywhere. मतलब इस वायर के 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम कहीं पर भी देखें वो क्या है, फिक्स है। जो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर है वही 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, वही क्या होगा यहाँ पर है। Means it is having uniform resistance per unit length. Uniform resistance per unit length. It's clear. Now suppose you have adjusted the point B. हम इन पॉइंट्स को रब किए दे रहे हैं। सपोज यू हैव एडजस्टेड द पॉइंट बी हियर। मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंट बी, गैल्वेनोमीटर का एक एंड हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सो सी हियर, नाउ रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB। रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB। अब 1 सेंटीमीटर का अगर हम रेजिस्टेंस ले लें X ओम, सो AB लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB मल्टीप्लाइड बाई X। इट्स क्लियर। हमको केवल ये पता है दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हियर वी हैव जस्ट एज्यूम्ड दैट 1 सेंटीमीटर का लेंथ क्या है, X है। इट्स क्लियर। नाउ सपोज द पॉइंट B इज दिस, सो R1 का लेंथ क्या होगा, AB की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। AB की लेंथ का रेजिस्टेंस ये है 1 सेंटीमीटर का X, तो AB लेंथ का कितना, इतना। नाउ R2 यू कैन सी, R2 विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC, दैट इज BC इंटू X। सो व्हाट विल बी R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 व्हेन यू विल फाइंड दिस अपॉन दिस मीन्स AB अपॉन BC। मतलब हमको क्या है, यहाँ पर R1 और R2 की एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता है कि एक्चुअल में वो कितने ओम के हैं। हमको केवल क्या है, उनकी लेंथ पता है और ये पता है दैट दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। सपोज दिस इज ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी R1 अपॉन R2, 40 अपॉन 60, दैट इज इक्वल्स टू 2:3। इफ़ यू टेक दिस एज, हम बी पॉइंट को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये 50 हो जाए, ये भी क्या हो जाए, 50 हो जाएगा फिर, क्योंकि टोटल लेंथ तुम देख रहे हो 100 है, टोटल लेंथ इज 100। देन R1 अपॉन R2 विल बिकम 1:1। इट्स क्लियर। सो इन दिस वे वी विल एडजस्ट द रेशियो। इट्स क्लियर।
Now see here, we will deduce the condition here. जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है दैट आई एम गोइंग टू डिड्यूस. सो यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज करंट आई. बैटरी कितनी करंट भेज रहा है ब्रिज में? आई. नाउ व्हाट विल हैपन, करंट विल डिवाइड हियर इन टू पार्ट्स. सपोज I1 करंट गोज इन दिस डायरेक्शन, सो रिमेनिंग इसमें जाएगी, मतलब इसमें कितनी जाएगी? I माइनस I1. इज क्लियर. हमने यहाँ बिगिनिंग में एज्यूम किया है दैट B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट से अधिक है. B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट से क्या है? मोर है. सो व्हेन I1 करंट विल रीच एट द पॉइंट B, व्हाट विल हैपन, सम करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर. कुछ करंट क्या हो जाएगी गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि B का पोटेंशियल D से अधिक है, मतलब करंट B से D जाएगी. B से D जाएगी मतलब I1 यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. गैल्वेनोमीटर से कितना गया? Ig. देयरफॉर रिमेनिंग कितना गया यहाँ पर? I1 माइनस Ig. इज क्लियर. अब Ig करंट ये आ रही है यहाँ पर, I माइनस I1 ये आ रही है. व्हाट विल हैपन, दे विल मीट एट दिस पॉइंट. हम किरचॉफ्स करंट ला लगा दें. I माइनस I1 इधर से आ रही है, Ig इधर से आ रही है, तो जब दोनों मिल जाएंगी तो कितनी हो जाएगी? I माइनस I1 प्लस Ig. इज क्लियर. नाउ I माइनस I1 प्लस Ig इज करंट इज दिस. I1 माइनस Ig इधर, यहाँ पर दोनों जब करंट मिलेंगी तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर करंट यू कैन सी वंस अगेन दिस प्लस दैट. सो I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस Ig प्लस Ig कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? इट इज I. इट इज क्लियर. नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप ABDA. इन द लूप ABDA. सो सी हियर, इन लूप ABDA from Kirchhoff voltage law. You can see here Kirchhoff voltage law we apply here. Sigma IR equals to sigma E. मीन्स हम लूप में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? A से B, B से D, D से A. You can see here we are moving from A से B, B से D, D से A. Is there any source of EMF here in this loop? No. तो सिग्मा E तो अपने आप जीरो हो जाएगा. Now what will be सिग्मा IR? तो एक IR हमको यहाँ मिलेगा, एक हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लिया. G इज व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. G is what? Resistance of galvanometer. So see here, what will be IR here? हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, therefore it will be I1 into R1. Then what is the IR across the galvanometer? Here also we are moving in the direction of current, means it will be Ig into G. Then here we are moving opposite to the current. करंट ये ऐसे जा रही A से D, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? D से A. So what will be IR? This into this with negative sign. I minus I1 into R3 equals to 0. It's clear? Now you can see here. Now we take the loop B, C, D, or you take B, D, C, B. Loop B, D, C, B from Kirchhoff voltage rule. B से D, D से C, C से B. It's clear? Now see here, what is BD? What will be IR? Here also there is no source of EMF. In this loop there is no source of EMF. कोई सेल नहीं है. So sigma E तो अपने आप जीरो है. Now what will be IR?
here IR will be positive because moving in the direction of current. So it will be IG into G. Then here also we are moving in the direction of current. IR will be this into this. So it will be I minus I1 plus IG into R4. Then here you move opposite to the current, क्योंकि हम ऐसे आए फिर ऐसे गए फिर इस तरीके से जा रहे हैं, मीन्स मूविंग फ्रॉम C to B. करंट B से C है. सो IR विल बी निगेटिव. व्हाट विल बी IR? करंट इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस. सो इट विल बी माइनस I1 minus IG into R2 equals to 0. Now in the balanced bridge we already know that IG is 0. Balanced bridge में क्या होता है? IG की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. It is clear? So see here, for the balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, IG इक्वल्स टू 0. अब जरा यहाँ पर देखें, अंडर दिस कंडीशन ये इक्वेशंस 1 और 2 क्या हो जाती हैं? ये 1 है एंड दिस इज 2. सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई, ये टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ गायब हो जाएगा क्योंकि IG तो 0 हो गया. व्हाट विल बी लेफ्ट? I1 इंटू R1 माइनस दिस इक्वल्स टू 0. मीन्स I1 इंटू R1 माइनस I minus I1 into R3 equals to 0. Now we can rearrange here. We can rearrange here like this. It will be I1 R1 equals to I minus I1 into R3. देख लें, जो निगेटिव टर्म था हम उस तरफ लिए गए. इट इज क्लियर? सिमिलरली हियर आल्सो व्हाट विल यू गेट? जब हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 में IG इक्वल्स टू 0, ये टर्म तो क्या हो जाएगा? IG इंटू जी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा. IG इंटू जी ये गायब हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू? हमने इसको यहाँ पर गायब कर दिया, यहीं पर बता देते. IG यहाँ से गायब हो जाएगा प्लस IG, क्योंकि उसकी जगह 0 हो गया. एंड फ्रॉम हियर I1 माइनस IG, सो IG इज 0, देयरफॉर यू कैन रिमूव IG, I1 इंटू R2. सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू? अगर हम उसको देखें हमको क्या बच जाएगा? I माइनस I1 इंटू R4 माइनस I1 इंटू R2 equals to 0. This also we will rearrange. कैसे rearrange करेंगे? ये टर्म हम क्या है उस तरफ लिए जाएंगे. You take I1 R2 in that side. So what will happen? I minus I1 equals to, you see here, I minus I1 into R4 equals to I1 into R2. But we will not write in this way. हम I1 into R2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. This equals to that, therefore you can write here in this way, I1 into R2 equals to I minus I1 into R4. I minus I1 into R4. When you will divide side by side, divide side by side, what will you get? अगर हम साइड बाई साइड डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा? You will get R1 upon R2 equals to, here when you divide I minus I1 cancel, R3 upon R4. It's clear? Means what will be R4? R4 equals to R3
into R2 upon R1. So in this way we can find the resistance of unknown value. जो अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स क्लियर. नाउ वन मोर थिंग, अंडर विच कंडीशन इट विल बी मोस्ट सेंसिटिव. So it will be most sensitive when all the four resistors and galvanometers resistors, all the four resistors and galvanometer resistance are of approximately near values. मतलब उनकी वैल्यूज में बहुत अधिक डिफरेंस ना हो. इट्स क्लियर. ये ऐसा ना हो कि R1 का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम के आसपास हो, R2 का रेजिस्टेंस 10 ओम के आसपास हो. Then its sensitivity will be less. Sensitivity will be less मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर हम चेंज करेंगे तो भी क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा. इफ़ यू चेंज, सपोज जब आई तुम्हारा कितना था, यहाँ पर दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आई जी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा आई जी इक्वल्स टू 1 एम्पियर के लिए. इट्स क्लियर. तो अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो भी ये क्या है 1.2 भी कर दे तो भी गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, मतलब क्या है, सेंसिटिव नहीं है. बट जैसे ही हम 1 से 1.1 करें एंड इफ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग लार्ज डिफ्लेक्शन, देन इट मीन्स इट इज मोर sensitive. Then it means it is more sensitive. Means what will be the sensitivity even on making a minor change in the galvanometer current. If galvanometer shows a deflection by larger angle, galvanometer's needle deflect by a larger angle, then it means it is more sensitive. And if it shows a feeble deflection, बहुत कम deflection show करे, means in that case it is having less sensitivity. So for greater sensitivity of the bridge, all the four resistors R1, R2, R3, R4 and galvanometer resistors all should be of approximately near about values. Means उनकी values आस पास हों. Now in the next lecture we will study about the application of the Wheatstone bridge. It's clear. Meter bridge we will study.